Good evening, students. Hope you all are in good health. Today we're going to and welcome. Today we're going to start the topic discrete mathematics series. Okay, and this is the part one of the series. And today we'll be covering four topics. Number one is proportional calculus. Number two is methods of proof, and number three is mathematical induction, and number four Boolean algebra. Okay, so it will be a bit lengthy video. Keep in mind. Okay, the first will be the proportional calculus. What we will be discussing. Number one is one sec. Number one is proportional calculus. Calculus. Number two is methods of proof. Very important topic. Number three is mathematical induction. And number four, Boolean algebra. So we'll be covering all these four topics today. So let's start because all these four topics would take a lot of time. So the class would be lengthy. So have patience and please follow the class. A lot of things will be covered and in a very easy manner. Okay. Now let's start with the topic. First is proportional calculus. Propositional calculus. अब व्हाट इज प्रोपोजिशनल कैलकुलस? अब पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट और अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. यू कैन से डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. इट कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स. प्रोपोजिशन, एक मिनट मैं लिख, लेट मी राइट इट. प्रोपोजिशन ये क्या है? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है. वन सेकंड, लेट मी रब इट. प्रोपोजिशन को क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. Declarative statement, and it can be either true or false. Proposition, it can be either true or false. It can be either true और false हो सकते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो. एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. दिस इज ट्रू. ओके. 2 plus 2 equal to 5. This is false, but it is 5. This is false, but this is a declarative statement. Okay, where are you going? This is not a proposition. Okay, because where are you going, you can say anything. The value can be anything. It said be true or false. Okay, so the question mark, wherever there is a question mark, that is not a proposition. Okay, now there is compound proposition also, because two things can be taken together. Example लो, एक compound statement. आप लोगों को proposition तो समझ में आ गया. अब compound proposition की बात करेंगे. Compound proposition. कंपाउंड प्रोपोजिशन में क्या होता है? इसमें अलग अलग प्रोपोजिशंस को हम ऐड करेंगे. एग्जांपल ले लो. मोर देन वन प्रोपोजिशन टेकन टुगेदर. जैसे एग्जांपल ले लो. रोजेस आर रेड and roses are red and violets are blue. Okay, I'm marking this. We'll talk about this also. Then let me write John is smart. John is smart, or or he studies every night. ठीक है. ओके, तो व्हाट वी आर डूइंग, मैंने यहाँ पे दो रेड मार्किंग किया, एक एंड और
तो दीज आर नोन एज लॉजिकल कनेक्टिव्स। इसको क्या बोलते हैं? दीज आर, इसको क्या, ये जो दोनों चीज है इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स। ओके, लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो हम क्या करेंगे, दो कनेक्टिव मतलब क्या, कनेक्ट करेंगे, रोजेस आर रेड एंड वायलेट्स आर ग्रीन, तो दोनों ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू, या एक ट्रू एक फॉल्स, ऐसे कुछ हो सकते हैं। जॉन इज स्मार्ट और ही स्टडीज एवरी नाइट। ठीक है, कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू होगा, तो यू नो एंड और, आप लोग पहले पढ़े थे, तो दो ज्यादा थिंग्स हो गई है। ठीक है, एंड और देखे हम कनेक्ट कर सकते हैं मोर देन वन प्रोपोजिशंस को। ठीक है, तो मोर देन वन प्रोपोजिशन यू कैन कनेक्ट थ्रू दिस स्टेटमेंट, दिस थिंग्स। तो लॉजिकल कनेक्टिविटीज क्या क्या है? कनेक्टिव्स क्या है? नंबर वन, एंड, इसको ठीक है, this one is and, or I can see or you can say conjunction also. Statement याद रखो। Number two, this one is or disjunction. Number three, this, एक मिनट रुको। हाँ, इसको, ये दो सिंपल, दिस और दिस, इसको क्या बोलते हैं? नॉट और नेगेशन। ओके, नंबर फोर, इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज, इफ देन और इफ देन। नंबर फाइव, इफ देन हो गया। नाउ दिस वन इज बाय कंडीशनल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इफ एंड ओनली इफ। ओके, ये सब के बारे में हम लोग आस्ते आस्ते समझेंगे, व्हाट आर दीज थिंग्स। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोजिशनल जो लॉजिक है इसमें हम लोग कुछ सेंटेंसेस लेंगे एंड वी गोइंग टू कन्वर्ट टू प्रोपोजिशनल लॉजिक। ओके, तो लेट्स टेक a propositional statements, you can say, convert the following to propositional statements। ठीक है, नंबर वन, राम एंड श्याम इज ए स्टूडेंट। राम एंड श्याम इज ए स्टूडेंट। ओके, राम एंड श्याम इज ए स्टूडेंट, तो इसका हम कैसे लिखेंगे? ले लो पी, राम इज ए स्टूडेंट, अब क्यू में मैं लिखूंगा श्याम इज ए स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, राम, यू कैन सी ओवर हियर एंड है, तो क्या करेंगे? पी एंड क्यू, बस हो गया। तो दिस इज ए प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट। होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे इज संडे और मंडे। टुडे इज संडे और मंडे, तो क्या करेंगे, हम पी को ले लेंगे, पी टुडे इज संडे, क्यू में ले लो टुडे इज मंडे। अब यहां पे क्या है, संडे, या राइट इट लाइक दिस, लेट मी रब इट फर्स्ट। टुडे इज संडे और मंडे, तो ये और है ना, तो हम क्या लिखेंगे? पी और क्यू। होप आई एम क्लियर। नंबर थ्री, ये स्टेटमेंट्स आप लोग का आना चाहिए क्योंकि इस तरह के एग्जाम क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं पेपर में एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट संडे, तो क्या लिखेंगे? पी, इट इज संडे, तो क्या होगा? नॉट पी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? इट इज नॉट संडे।
अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, टफ करते रहेंगे, मीन स्टेटमेंट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेके आएंगे एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. ओके. नंबर 4. Ram teach Sam Ram teach Sam or Raju, but not at the same time. इसका मतलब क्या होगा, पी में क्या लिखेंगे, राम टीच सैम. अब क्यू में लिखेंगे क्या, राम टीच राजू. ओके. अब क्या बोला, राम टीच श्याम और राजू. ठीक है, बट नॉट एट द सेम टाइम. मतलब पी और क्यू. ओके. राम टीच सैम और राजू, तो ये हो गया और, धीरे धीरे और ना. ठीक है, बट क्या होता है, राम टीच श्याम और राजू, राम टीच श्याम और राम टीच राजू, ये दोनों भी तो ट्रू है, क्योंकि बोथ आर ट्रू, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू, दिस और दो. ठीक है, तो जब पी राम टीच सैम जब शाम को पढ़ा रहा है तो राजू को नहीं पढ़ा रहा, तो दिस इज और. जब ये ट्रू होगा तो क्यू में भी, क्यू कैन बी फॉल्स, व्हेन क्यू इज ट्रू पी इज फॉल्स. ठीक है, तो और स्टेटमेंट इसके लिए हो गया. लेकिन बोथ दोनों को पढ़ा रहे, पी और क्यू दोनों को पढ़ा रहे, सैम और राजू दोनों को पढ़ा रहे, तो क्या हो गया, एंड हो गया. और क्या हो रहा, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है. ठीक है, बट नॉट, ये क्या हो गया, राम टीच सैम एंड राजू, ये ट्रू है. ठीक है, बट नॉट एट द सेम टाइम, तो नॉट ऑपरेटर लगा दो. अंडरस्टूड. तो दिस इज द वे टू राइट. नेक्स्ट इज, आप लोगों को समझ आए, एक बार और एक्सप्लेन करता हूं. राम टीच सैम को मैंने पी ले लिया, राम टीच राजू तो उसको मैंने क्यू ले लिया. ओके, बट नॉट एट द सेम टाइम. तो अब लेकिन ट्रू तो है, जब राम दोनों को पढ़ा रहे, तो दोनों को पढ़ा रहे, तो दिस वन टीचर्स बोथ, टीचर्स बोथ, ये. लेकिन जब राम शाम को पढ़ा रहे, तो राम शाम को पढ़ा रहे, तो एट दैट टाइम क्या होगा, राजू को नहीं पढ़ा रहे, तो दिस इज और हो गए. अब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों ट्रू है, लेकिन क्या है, यहाँ पे नॉट लगेगा. क्यों, बोथ है, लेकिन बोथ क्या है, फॉल्स है, एट द सेम टाइम नहीं हो रहे. दिस इज ट्रू, बट यहाँ पे नॉट लगाने का मतलब क्या है, नॉट एट द सेम टाइम. ओके, नॉट लगा दिया मैंने. फिफ्थ, इफ इट इज हॉट इट शैल रेन. तो क्या लिखेंगे, पी को क्या लिखेंगे, पी को, एक मिनट रुको, इट इज हॉट, क्यू में क्या लिखेंगे, इट विल रेन. अब क्या हुआ, इफ इट इज हॉट, इफ, तो पी, इफ इट इज हॉट इट शैल रेन, तो पी इंप्लाइज क्यू. पी ट्रू होगा तभी क्यू ट्रू होगा, पी फॉल्स होगा तो क्यू क्या होगा, ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा. हॉट नहीं है तो फिर क्या होगा, रेन भी नहीं होंगे. तो पी इज, इफ देन जब होगा तो फिर क्या करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट यूज करेंगे, इंप्लाइज वाले. वन से, नाउ सिक्स क्वेश्चन. If the humidity is high, if the humidity is high, it will rain either today or tomorrow.
टुमारो, ठीक है। जैसे इफ द ह्यूमिडिटी इज हाई क्या होगा, इट विल रेन इधर टुडे और टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ह्यूमिडिटी इज हाई एक स्टेटमेंट हो गया, तो वी हैव टू राइट पी, ह्यूमिडिटी इज हाई, क्यू, इट विल रेन टुडे, आर, इट विल रेन टुमारो, ओके। इट विल रेन टुडे और टुमारो लिखा हुआ है, तो क्यू और आर लिख सकते हैं, आज या कल में होंगे, ठीक है। इफ इट इज ह्यूमिड, इफ जब लगेगा तो पी, इफ इट इज ह्यूमिड देन इट विल रेन टुडे और टुमारो, तो दिस इज द स्टेटमेंट, ठीक है। अब तो शायद आप लोग को इजी भी लग रहा है, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट, ये जरूरत है इस तरह के आपको स्टेटमेंट्स में, स्टेटमेंट्स को आपको लॉजिकल प्रोपोर्शनल स्टेटमेंट में आपको कन्वर्ट करना, ये पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आएंगे पेपर में। इफ द विंड इज हाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द विंड is high if the wind is high and the temperature is low, temperature and the temperature is low, then one does not feel doesn't feel comfortable. तो आप इसे कैसे कैसे लिखेंगे, पी लिखेंगे, पी विंड इज हाई, क्यू टेम्परेचर इज लो, आर one does not feel comfortable, doesn't feel comfortable. तो अब क्या होगा, इफ द विंड इज हाई एंड द टेम्परेचर इज लो, मतलब क्या होगा, यहाँ पे एंड लगा हुआ ना, तो क्या होगा, विंड इज हाई एंड द टेम्परेचर इज लो। यदि इफ दिस मतलब क्या हो गया, ये हो गया, देन वन डज नॉट फील कंफर्टेबल, देन आर, फाइन, इस तरह से। एट्थ, एट्थ में क्या है, इट रिक्वेस्ट करेज एंड स्किल टू क्लाइंब ए माउंटेन, ठीक है। तो इट रिक्वेस्ट करेज, तो पी को क्या लिखेंगे, वन रिक्वेस्ट करेज, क्यू वन रिक्वेस्ट स्किल, और आर में क्या लिखेंगे, वन क्लाइम्स माउंटेन। इतना तो आप लोग क्लियर हो गया, इट रिक्वेस्ट करेज एंड स्किल टू क्लाइंब ए माउंटेन, आप इसको समझने वाली चीज है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट इतना सिंपल नहीं, इट रिक्वेस्ट करेज टू एंड स्किल टू क्लाइंब ए माउंटेन, मतलब क्या है, माउंटेन में क्लाइंब करना है, अंडरस्टूड। तो माउंटेन में क्लाइंब करने के लिए क्या चाहिए, स्किल चाहिए, ठीक है, स्किल चाहिए। लेकिन यदि करेज ना हो, इफ देयर इज नो करेज, तो जितना भी स्किल हो और माउंटेन में चढ़ना, ए पर्सन कैन नॉट क्लाइंब ए माउंटेन, मतलब क्या होगा, करेज होगा उसके बाद ही वो माउंटेन में जाएगा, ठीक है। इफ देयर इज नो करेज ही वोंट गो टू द माउंटेन, तो उसका मतलब क्या हो गया, करेज, इट रिक्वेस्ट करेज, इफ इट वंस रिक्वेस्ट करेज, वन रिक्वेस्ट स्किल, वन रिक्वेस्ट दिस, ओके। तो वन क्लाइम्स माउंटेन, तो क्लाइंब, एक बंदा माउंटेन में चढ़ेगा इफ द पर्सन हैज करेज एंड द पर्सन हैज स्किल, ओके। तो P एंड Q मैं लिख सकता हूँ, वन रिक्वेस्ट करेज एंड स्किल,
वन रिक्वायर्स करेज एंड स्किल, ये एंड वाला एंड, यहाँ पे एंड आ गया, और हाँ, टू क्लाइंब ए माउंटेन, ओके। तो a person can climb a mountain if and only if a person has courage and skill. Understood? If and only if a person wants to climb a mountain, he must have courage and skill. दोनों होना चाहिए, तभी वो माउंटेन में जा सकते हैं. तो दिस इज द वे टू से. उसके बाद नेक्स्ट है, he requires a doctor. Ninth, this is the last we are doing of this statement. Okay, he requires a doctor and also a lawyer. If and only if he is sick and injured. Okay, तो हम क्या लिखेंगे? P, he is sick, he requires a doctor पहले. Okay, Q, he requires a lawyer. LR लिख दे, lawyer. R, he is sick. S, he is injured. अब यहाँ पे क्या इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ ना, इफ एंड ओनली इफ, तो इसमें बाय कंडीशनल स्टेटमेंट ये यूज होते हैं, कीप इन माइंड. ओके, अब क्या बोला, ही रिक्वेस्ट ए डॉक्टर एंड ऑल्सो ए लॉयर, एंड लगा हुआ यहाँ पे, तो क्या हो गया, पी एंड क्यू, ये तो ठीक है. ही इज सिक एंड इंज्योर्ड, अगेन इंज्योर्ड, ही इज सिक एंड इंज्योर्ड, आर एंड एस. ओके, इफ एंड ओनली इफ मतलब ये वाला स्टेटमेंट लगा दो, बस हो गया, दैट्स द थिंग. अब कभी कभी क्या करते हैं, आप लोग को पी और क्यू और आर का फॉर्म में भी दे देंगे, उसको बोलेंगे इंग्लिश स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके दिखाओ. ओके, एक एग्जांपल ले लेते, कन्वर्ट इनटू, नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट पी, ही नीड्स अ डॉक्टर, लिखने दो. क्यू, he needs a lawyer. Okay, R, he has accident, he met accident, you can say he met an accident. इंग्लिश आप लोग ठीक कर लो, he met an accident. चलो मैं एन लिख देता हूँ, he met an accident, he is sick, you, he is injured. ओके, इस तरह का दिया हुआ है. तो स्टेट द फॉर्मूलाज, स्टेट द फॉलोइंग इन इंग्लिश. इंग्लिश में आप कन्वर्ट करना है. कौन सा स्टेटमेंट देखते, एस इंप्लाइज पी एंड आर इंप्लाइज क्यू. सेकेंड एक क्वेश्चन और है, पी इंप्लाइज एस यू, एस और यू. ओके, तो ये कैसे करेंगे, ही नीड्स ए डॉक्टर, ठीक है, ही नीड्स ए डॉक्टर. क्या बोला, पी, ही इज सिक, उसका मतलब क्या है, इफ ही इज सिक, एस, ही नीड्स क्या लिखा है, एस, तो ही इज सिक, ही नीड्स ए डॉक्टर, माने इफ ही इज सिक ही नीड्स ए डॉक्टर, हम लिख सकते हैं फर्स्ट वाला स्टेटमेंट. इफ ही इज सिक, इस स्टेटमेंट का मीनिंग मैं बता रहा हूं, if he is sick he needs a doctor. ओके, उसके बाद यहां पे एंड लगा हुआ है, तो यहां पे एंड लिख दो. आर और क्यू, आर क्या है, if he met an accident he needs a lawyer. क्यू है, क्यू लॉयर है, एंड
if he met an accident, he needs a lawyer. Okay, so this is the reply. This is the answer. Number two. आप क्या दे? P. P क्या है? If he needs a doctor, अब S और U है. S और U मतलब क्या? S क्या है? He is sick or he needs a doctor. If he needs a doctor, he is sick or he is injured. You क्या? Injured. If he needs a doctor, P is for doctor. P is for doctor. He needs a doctor if he is sick और ही इज. एस क्या है? एस इज फॉर सिक. एस का सिक है. और इंज्योर्ड के लिए क्या? यू है. एस और यू. और ही इज इंज्योर्ड. इस तरह के. तो इस तरह के इंग्लिश स्टेटमेंट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, होप मैंने क्लियर कर दी ये बातें. अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. वी गोइंग टू डिस्कस बोथ द थिंग्स. अब यूनिवर्सल के लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर ऑल. ये वाला सिंबल यूज करेंगे. फॉर ऑल. यहाँ पे एक्स लिख दिए तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? फॉर ऑल एक्स. ओके, और यहाँ पे देयर एग्जिस्ट फॉर सम एक्स. फॉर ऑल नहीं, कुछ लोगों के लिए. फॉर सम एक्स, इसका मतलब ये होता है. ठीक है. यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए वी विल यूज इम्प्लाई सिंबल. कहीं जरूरत होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये दिमाग में रखो जो ये इम्प्लाई सिंबल यूज होते हैं. और एग्जिस्टेंशियल के लिए वी विल यूज एंड सिंबल. बस ये दिमाग में रखो. ये आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर वी विल बी एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स. ओके, उसका पहले एक एक दो एग्जांपल लेते हैं. जैसे राम इज टॉल, तो क्या लिखेंगे? राम इज टॉल. तो इसमें टॉल, इसको राम भी लिख सकता हूँ ऐसे करके. तो राम इज टॉल. ओके, फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड लव, राम लव सीता. तो इसमें क्या लिखेंगे? ये लव्स. लव से लव स्टेटमेंट को बाहर निकालो और राम कॉमा सीता लिख दो. तो क्या होगा? राम लव सीता. दिस इज द वे टू राइट इट. ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल ले लो. राम टीचेस इधर मैथ्स और सीएस. ओके, तो हम क्या लिखेंगे? राम टीचेस इधर मैथ्स और सीएस. तो राम टीचेस, ये टीचेस को बाहर निकालो. टीचेस राम, यहाँ पे मैथ्स लिख दो. ओके, आप लिखो टीचेस, यहाँ पे राम लिखो और यहाँ पे लिखो सीएस कंप्यूटर साइंस. और दोनों में क्या बोल दे? और है ना, और स्टेटमेंट इज देयर. और स्टेटमेंट यहाँ पे और लगा दो. नो पॉइंट क्लियर. एक और फोर्थ, एक और एग्जांपल ले लो. राम टीचर्स मैथ्स if and only if Ram does not teach CS. Okay,
तो क्या लिखेंगे, टीच लिख दो, राम कॉमा मैथ्स, इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ ये सिंपल लगा दो, यहाँ पे लिखो टीच, एक मिनट लेट मी रब इट, यहाँ पे लिखो राम कॉमा सी एस, इफ एंड ओनली इफ राम डजेंट टीच सी एस, डजेंट मतलब क्या, नेगेशन, तो ये नेगेशन सिंबल लगा दो, ठीक है, दिस इज द वे टू राइट। तो ऐसे करके आप लोग को समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा टफ करना चाह रहा हूँ इसको, एग्जाम्पल को, ठीक है, ले लो। अब जो हमने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसको कहाँ यूज करेंगे, दैट इज ऑल्सो थिंग, ये तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब वी विल बी यूजिंग दोज थिंग्स, ठीक है। फिफ्थ, ऑल स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, ऑल स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये लाइक है, लाइक को लगाओ यहाँ पे, लाइक ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट कुछ भी, राम शाम कुछ भी हो सकता है, तो एक्स लगा दो वेरिएबल, और फुटबॉल लगा दो। एक्स कैन बी एनी पर्सन, लेकिन क्या हुआ, वो जो एक्स शुड बी व्हाट, एक्स शुड बी ए स्टूडेंट, वेरिएबल्स ऑल स्टूडेंट, तो क्या हो गया, स्टूडेंट का नाम तो नहीं पता, तो एक्स इज ए वेरिएबल, हम क्या करेंगे, स्टूडेंट, इफ स्टूडेंट लिखो, स्टूडेंट लिख दिए, और ब्रैकेट में एक्स लिख दो, ठीक है, ओके। इफ एक्स इज ए स्टूडेंट, उसका मतलब इफ एक्स इज ए स्टूडेंट, इफ एक्स इज ए स्टूडेंट, सिंपल लगा दिया मैंने, इफ एक्स इज ए स्टूडेंट देन एक्स लाइक्स फुटबॉल, अंडरस्टूड। और यहाँ पे ऑल लगा हुआ है, ऑल लगा लो मतलब क्या होगा, फॉर ऑल एक्स कर दो, अंडरस्टूड। तो आपने क्या किया, ऑल स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, यहाँ पे जैसे राम शाम ये सब लिखा हुआ, राम लिखा हुआ, यहाँ पे तो कोई बंदा का नाम नहीं लिखा हुआ ना, तो हमें वेरिएबल में डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे एक्स, एक्स लाइक्स फुटबॉल, तो एक्स हो गया, ठीक है। एक्स इज ए स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, एक्स इज ए स्टूडेंट हो गया, इफ एक्स इज ए स्टूडेंट देन एक्स लाइक्स फुटबॉल। अब ये क्या, ऑल लिखा हुआ, तो ऑल एक्स कर दो, अंडरस्टूड। ऐसे करके सिक्स क्वेश्चन, सम स्टूडेंट्स आर हैप्पी, अब स्टूडेंट का नाम तो नहीं है, तो क्या करेंगे, हैप्पी, आप ब्रैकेट में एक्स लगा दो, ओके। सम स्टूडेंट्स आर हैप्पी, सम स्टूडेंट्स मतलब क्या होगा, इफ एक्स इज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट लिख दो यहाँ पे, ठीक है। सम स्टूडेंट्स आर हैप्पी, ओके, मतलब ऑल तो नहीं है, सम, तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या बोला था हमने, सम, सम में क्या लगाना है हमें, एंड लगाना है, दिस ऑपरेटर, तो इस जगह में तो हम इफ एंड ओनली इफ तो लगा ही नहीं सकते, व्हाई आई कैन नॉट राइट, बिकॉज आपने यहाँ पे देखा, फॉर इफ एक्स इज ए स्टूडेंट देन दिस, फॉर ऑल एक्स, यहाँ पे क्या सम लिखा हुआ, सम लिखने से यहाँ पे क्या एंड ऑपरेटर हमें यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना है, ये सिंबल लगाना पड़ेगा, एग्जिस्टेंट, ये कौन सी है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, तो दिस इज द वे टू राइट, होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ये इसके आगे चलते हैं, एक सेकंड रुके, कुछ लॉज है, इन इम्पोर्टेंट लॉ, एसोसिएटिव लॉ, दिस लॉज यू शुड नो एंड यू शुड अंडरस्टैंड, ओके। तो ये छोटे छोटे लॉज है जो मैं अभी आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ लॉज ऑफ एल्जेब्रा प्रोपोजिशन, थोड़ा स्पीड से करेंगे हम लोग, पी और पी, तो इसका इक्विवेलेंट क्या है, पी होगा, पी एंड पी, इसका भी इक्विवेलेंट क्या होगा, पी होगा, पी और क्यू और आर, जिसको हम लिख सकते हैं पी और क्यू और आर, ओके। तो इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, पी एंड क्यू एंड आर इक्वल टू
इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट बोलते हैं. दिस सिंबल मीन्स लॉजिकली इक्विवेलेंट. राइट इट. लॉजिकली इक्विवेलेंट. Equivalent. Okay. This you can write P and Q and R. Okay. उसके बाद आइडेंटिटी लॉ. पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये क्या हो गया आपके एसोसिएटिव लॉ. ओके. इसको बोलते हैं आइडेम्पोनेंट लॉ. आइडेम्पोनेंट पोटेंट. आइडेम्पोटेंट. ओके. एक आएगा कम्यूटेटिव लॉ. पी और क्यू, क्यू और पी, पी एंड क्यू, क्यू एंड पी. इसको क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ. उसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत जगह हमें यूज करना है. पी और क्यू एंड आर. तो हम क्या लिखेंगे पी और क्यू एंड पी और आर. एक और करते हैं पी एंड क्यू और आर. तो हम लिख सकते हैं पी एंड क्यू और पी एंड आर. इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद P और F. F is the false statement. F is false. So it depends on P only. Okay. P and tree. True. It depends on P only. उसके बाद P और true. इसको क्या P और true. T is for true. तो ये true ही आएंगे. उसके बाद हम लिख सकते हैं P and F. ये क्या होगा ये F ही होगा. एंड में क्या होता है फॉल्स होगा तो क्या होगा फॉल्स ही होगा. इफ एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट इज. इसको क्या बोलते हैं आइडेंटिटी लॉज. ओके. उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट एक होता है इन्वोल्यूशन लॉ. नॉट पी. तो विच इज इक्वल टू पी. इसको क्या बोलते हैं इन्वोल्यूशन लॉ. लॉ का नाम याद रहे ना रहे कौन से आपको आपको एटलीस्ट ये सारे लॉ का नाम नेम इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो द फॉर्मूला. ओके. फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. पी और नॉट पी. तो ये क्या हो जाएगा पी और नॉट पी में ट्रू हो जाएगा. पी एंड नॉट पी. तो P एंड नॉट P. तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. तो इसको जो है इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ. ओके. वन इज डी मॉर्गन्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी हम लोग यूज करेंगे. नॉट P और Q विच इज इक्वल टू नॉट P एंड नॉट Q. उसके बाद क्या है नॉट P एंड Q इक्वल टू लॉजिकल इक्विवेलेंट नॉट P और नॉट Q. इसको क्या बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ. वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारे लॉज आप लोग को आना चाहिए. ये सब आप नोट डाउन कर लो. कभी अभी यूज करेंगे हम लोग स्टेटमेंट में. अब एक दो और फॉर्मूला है जो हम बात लेट मी डिस्कस दैट थिंग. P implies Q को हम लिख सकते हैं नॉट P और Q. ओके. कीप इन माइंड.
अब हम लोग आगे एक दो क्वेश्चन करते हैं। So that P implies Q, not and not Q implies not P is a tautology. Is a tautology. Tautology मतलब all the statements are true. तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जो पहले मैंने जो इतनी सारे लॉज बताए, इस लॉ का थ्रू से हम लोग सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। दिस इज द क्वेश्चन। P implies Q and not Q implies not P, ये है। तो इसका हम लिख सकते हैं P not P और Q and not Q, सॉरी Q इज द सेम। एक मिनट, ये बड़ा Q है, ये बड़ा P है। P और Q दोनों सेम है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं नॉट P और Q implies not P। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर सकते हैं, नॉट P एंड नॉट Q, नॉट P एंड नॉट Q, और नॉट P एंड नॉट Q, और नॉट P एंड नॉट Q। सॉरी, गलत हो गया, इसको फिर एक बार रब करके देखते हैं। क्या लिख सकते हैं, नॉट P एंड नॉट Q, और Q एंड नॉट Q implies not P। होप आई एम क्लियर। ये क्या किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया। ये देखो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी डिस्कस्ड अबाउट इट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। P दिस, तो P और P Q एंड और R, तो P और Q कर दिया एंड सिंबल बीच में आ गया, P और R। ये जो दो है, ये दोनों फार्मूला एक फार्मूला हमने यूज किया यहाँ पे। अब एक चीज आप लोग देखो यहाँ पे, सी ओवर हियर, ये जो स्टेटमेंट Q एंड नॉट P, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, दिस और दिस है, तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को छोड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं। और है ना, देयर इज और सिंबल, तो इस स्टेटमेंट को हम छोड़ सकते हैं। फॉल्स है तो इसको छोड़ दो, तो व्हिच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नॉट P एंड नॉट Q implies not P। okay, so what we can write, which is equal to, नॉट को बाहर निकाल दो, नॉट को यदि बाहर निकाल दोगे तो व्हाट वुड हैपन, P और Q लिख सकते हैं। ये भी शायद मैंने फॉर्मूला लिखा है कहीं, देखें, लेट में एक और फॉर्मूला, लेट मी राइट, ये देखो यहाँ पे नॉट P और Q मतलब नॉट P एंड नॉट Q, डिमॉर्गन्स लॉ, ये डिमॉर्गन्स लॉ हमने यहाँ पे यूज कर लिए, ठीक है, और नॉट P। तो यहाँ पे क्या मैंने यूज किया, यहाँ पे जो लॉ यूज किया, क्या डिमॉर्गन्स यूज किया, डिमॉर्गन्स लॉ। आप क्या लिख सकते, इसको पूरा को A ले लो एंड पूरा को B ले लो। A implies B मतलब क्या होगा, नॉट A और B, वी कैन राइट लाइक दिस। तो नॉट A मतलब क्या होगा, नॉट A का वैल्यू कितना है, ब्रैकेट में नॉट P और Q, और B का वैल्यू कितना है, नॉट P। ओके, तो इसको लिखते नॉट नॉट में क्या होगा, नॉट और नॉट में नॉट चला गया, तो P और Q और नॉट P और Q और नॉट P। तो इसका हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं, या इसको यदि आप नहीं यूज करोगे तब भी कोई बात नहीं, P और नॉट P डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करें, और
Q or not P. We can write like this. या इसको यूज सेम सिंबल है, सेम सिंबल इज देयर, नॉट और है, तो आपको इसको सीधा खोल दो इसको, पी क्यू और नॉट पी। आप पी एंड पी और नॉट पी, पी और नॉट पी में क्या होता है, पी और नॉट पी, पी और नॉट पी और क्यू, वी कैन राइट लाइक दिस। पी और नॉट पी में क्या होते हैं, ट्रू होंगे, ट्रू और क्यू, ट्रू और क्यू में क्या होगा, ट्रू होगा, देयरफॉर क्या हो गया ये, इट इज ए टोटोलॉजी। होप आई एम क्लियर। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सेम सिंबल है तो इसको डायरेक्ट खोल दो। तो पी और नॉट पी में क्या होगा, पी और नॉट पी में ट्रू होगा, हमने ये सारे स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे देखे, पी और नॉट पी। ये देखो पी और नॉट पी क्या किया, ट्रू है, पी एंड नॉट पी क्या होगा, फॉल्स होगा, पी और नॉट पी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ट्रू कर दिए। ट्रू और क्यू, ट्रू और क्यू और है ना, तो फिर क्या होगा, और होने से ट्रू और फॉल्स जो भी होगा तो ट्रू ही आएगा ना, तो ट्रू मतलब क्या होगा, टोटोलॉजी, तो विच इज अ टोटोलॉजी। होप आई एम क्लियर। अब एक और क्वेश्चन है, सो दैट so that P implies not Q or P implies not R is logically equivalent to not, not का ये भी सिंबल, दोनों सिंबल है, P and Q और R, ऐसे कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में, तो लॉजिकल इक्विवेलेंट हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या करेंगे, P और नॉट P, Q and P implies not R, ऐसे कुछ दिया हुआ है, which is equal to not P or not Q, we can write like this, and not P और not R, we can write like this। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, तो व्हाट विल डू, विच इज इक्वल टू नॉट पी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करें, नॉट एंड नॉट पी और नॉट आर, यू कैन राइट लाइक दिस, और नॉट क्यू और ये लग गया नॉट क्यू एंड नॉट पी एंड नॉट आर। एक मिनट, लेट मी रब इट, तो बिट कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन करना तो पड़ेगा, पेपर में आएंगे। ठीक है, हम क्या लिख सकते, नॉट क्यू लिख दो, ये एंड सिंबल है, एंड लिख दो, अब ये पूरा एज स्टेटमेंट लिख दो सिंपल, नॉट पी और नॉट आर, ऐसे कुछ है। नॉट पी एंड नॉट पी में क्या होगा, पहले नॉट पी एंड नॉट पी दोनों में क्या होगा, नॉट पी होगा और नॉट आर, और नॉट क्यू एंड नॉट पी एंड नॉट आर। एम आई डूइंग करेक्ट, एक मिनट देखने दीजिए, नॉट क्यू, तो व्हाट वी कैन राइट, नॉट यदि बाहर निकाल लो तो क्या होगा, पी एंड आर और ये पी क्यू आर तीनों आ गए इसमें ना, लेट मी सी, क्यू पी आर, यहाँ पे क्या है, क्यू आर, फिर इज द पी,
तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नॉट क्यू एंड, ये दोनों में भी पी और आर में मैं नॉट कॉमन ले सकता हूँ, नॉट कॉमन जिसे ले लिया पी एंड आर, वी कैन डू लाइक दिस। ओके, आप क्या लिखेंगे, पी एंड आर को ए ले लो, तो क्या होगा, नॉट ए और नॉट क्यू एंड नॉट ए, ऐसे कुछ स्टेटमेंट आ गया। तो व्हाट यू कैन राइट, विच इज इक्वल टू, वही सेम आ रहे हैं, तो व्हाट वी कैन राइट, व्हाट वी कैन राइट, एक मिनट लेट मी सी। ठीक है, तो हम लेट कैन राइट नॉट ए, और यहां से भी नॉट कॉमन ले लो, तो क्यू और ए वी कैन राइट लाइक दिस, विच इज इक्वल टू नॉट कॉमन ले लो, तो ए एंड क्यू और ए कैन राइट लाइक दिस, बिकॉज क्या दोनों से नॉट कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया, ए हो गया, और क्या हो गया, नॉट में कन्वर्ट हो गया, और क्या हो गया, एंड में कन्वर्ट हो गया, और क्यू ये तो ब्रैकेट का अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड, आप क्या करेंगे, नॉट लगा दो, ए एंड क्यू और ए एंड ए, वी कैन राइट लाइक दिस, इक्वल क्या लिख सकते, ए और क्यू, ए एंड क्यू और ए, वी कैन राइट लाइक दिस, सेम ही हो गया स्टेटमेंट, आई थिंक द स्टेटमेंट गॉट सेम, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, तो क्या किया, ए, लेट मी डिलीट इट, तो ए एंड क्यू और ए वी कैन राइट, अब हम ये वैल्यू से रिपोर्ट कर दो, लेट मी राइट द वैल्यूज, ए का वैल्यू कितना है, नॉट ए का वैल्यू व्हाट आई हैव टेकन, पी और आर, पी एंड आर, और पी एंड आर करके, इज डिड यू गेट एनीथिंग, वी आर गेटिंग नथिंग, we are getting nothing, so what we'll do, we will drop it, we are getting nothing, we are hovering here and there only, तो इसको क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा जो मीन्स द स्टेटमेंट कम्स प्रॉपर्ली, इतना तो क्लियर है। तो ए का वैल्यू कितने है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू कितना, पी एंड आर, यही लिख दो सिंपल, पी एंड आर एंड क्यू, और ए का वैल्यू कितना है, पी एंड आर, वी कैन राइट लाइक दिस, विच इज इक्वल टू पी एंड आर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नॉट, ये सिंबल है, दिस सिंबल इज देयर, लेट मी सी, लेट मी गो थ्रू द क्वेश्चन, नॉट को बाहर, नॉट को मैंने बाहर निकाल दिया, उसके बाद पी, अच्छा क्यू आर, ओके, ओके, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एक्चुअली पी क्यू आर मतलब क्या, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो हम इसको लिख सकते हैं, इतना करने की जरूरत ही नहीं था, यहाँ पे पी लिख दो, पी एंड आर दोनों ट्रू है, तो पी भी लिख सकते, वी कैन राइट पी एंड क्यू और आर, क्योंकि पी और आर दोनों ट्रू है तो आर को रख सकते हैं, क्योंकि ट्रू, यू हैव टू प्रूव इट, सिंपल, नॉट पी मतलब फॉल्स है, और सिंपल पी है मतलब क्या, पी इज ट्रू, नॉट पी मतलब फॉल्स है, तो हम पी और आर दोनों ट्रू है, तो कोई भी एक को रखोगे तभी, देन ऑल्सो इट इज, इट डजंट मैटर एट ऑल, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों में कोई भी एक को रखोगे देन ऑल्सो इट विल वर्क, तो यहाँ पे पी एंड आर, पी और आर दोनों ट्रू है, तो पी और आर में आर को रखो या पी को रखो, इट डजंट मैटर, लेकिन क्या क्या हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, पी और आर है, पी को रखा नहीं उन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रू तो दोनों ही था ना, और यहाँ से क्या होगा, पी, यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू था, आर था, आर इज ऑल्सो ट्रू, तो एक को रखा है, तो देन ऑल्सो वी कैन डू इट लाइक दिस, ओके, तो ऐसे करके इन्होंने प्रूव किया है।
ठीक है, तो डू नॉट गेट पैनिक्ड। ठीक है, जैसे हम मैं कंफ्यूज, डू नॉट गेट कंफ्यूज, सेम है, स्टेटमेंट इज सेम। नाउ वी विल डू द रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस रूल। प्रेसिडेंस रूल, आप यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एक स्टेटमेंट को जब हमें सपोज ट्रूथ टेबल का फॉर्म में देते हैं, एग्जांपल ले लो, एक स्टेटमेंट है P implies Q और नॉट आर, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट दे दिया, आर एक्सक्लूसिव और क्यू, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा ट्रूथ टेबल जब करेंगे, तो ये वाला पहले करना है या ये वाला पहले करना है, या ये वाला पहले करना है या ये वाला पहले करना है, हमें तो पता नहीं है कौन सा पहले, हम ट्रूथ टेबल में कैसे करेंगे। ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू करेंगे या क्यू इम्प्लाइज नॉट आर को, क्यू एंड नॉट आर को पहले करना है, या आर बाई कंडीशनल नॉट आर बाई कंडीशनल आर इसको करना है, या आर एक्सक्लूसिव और क्यू, किसको पहले करना है वो तो हमें पता नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देयर शुड बी अ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यूज करेंगे। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में क्या क्या है, एंड इंप्लाइज देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर किसका है, इंप्लाइज का, फर्स्ट ये वाला सॉल्व होगा। नंबर टू एंड, नंबर थ्री और एंड एक्सक्लूसिव और। ठीक है, दोनों में कोई भी हो सकता है। एंड फोर्थ में कौन सा, इंप्लाइज एंड बाई कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इस दिस इज द प्रेसिडेंस। तो उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब व्हाट यू कैन से, अब फिर वो स्टेटमेंट लिखते हैं, P implies Q and not R implies by conditional operator R exclusive और Q। तो हम क्या करेंगे, पहले बोला नॉट ऑपरेटर, तो हम क्या करेंगे, पहले यदि हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, पी क्यू आर, एग्जाम्पल ले लो, पी क्यू आर, इसका जो भी होंगे ट्रू फॉल्स जो भी होंगे वो तो आप लोग देखोगे। ठीक है, तो या बुलियन अलजेब्रा अभी आने वाले हैं, उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो पी क्यू आर तीनों दिया हुआ है, तो इसमें पहले फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, नॉट ऑपरेटर करना, दिस वन, तो हम क्या करें, नॉट आर कर दो। उसके बाद कौन सी है, एड वाला है, तो क्या होगा, क्यू एंड नॉट आर, ये हो गया, क्यू एंड नॉट आर, ये पहला हो गया, पहला मतलब ये ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट है। ओके, उसके बाद कौन सा करना है, ये वाला हो गया। उसके बाद है एक्सक्लूसिव और, दिस एंड और एंड एक्सक्लूसिव और, तो ये वाला एक्सक्लूसिव और मतलब ये वाला स्टेटमेंट पहले करना है, तो हम क्या लिखेंगे, आर एक्सक्लूसिव और क्यू, ये वाला स्टेटमेंट पहले कर दिए। ये वाला करने के बाद कौन सा करना है, एक्सक्लूसिव का क्या, कंडीशन बाय कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन है पी इम्प्लाइज क्यू, ये वाला तो बना हुआ है, ये और ये है, तो हम क्या करेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू एंड नॉट आर, ये वाला पहले करना है। उसका मतलब क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट करना है, पी इम्प्लाइज, अंडरस्टूड, ये वाला स्टेटमेंट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बाय कंडीशनल वाला लगाएंगे, अंडरस्टूड। तो दिस इज द, ये इसीलिए हम लोग क्या होगा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी हमें पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होप आई एम क्लियर। अब चलो नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते, पी इट इज रेनिंग, पी इट इज रेनिंग, क्यू nobody can go to see the film, nobody can go to see the film, ऐसे कुछ है, पी इट इज रेनिंग और क्यू क्या, nobody can go to see the film, ऐसे कुछ है। तो अब इसको हम कैसे प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू प्रोपोजिशन एंड प्रूव। क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू प्रोपोजिशन
and then prove it is a tautology. वो जो स्टेटमेंट जिसमें हम लोग फिर पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, उस क्वेश्चन को फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बार, ठीक है? तो सो दैट इट कैन बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। फिर एक बार बात करेंगे उसकी। अब क्या बोला? इट इज रेनिंग, पी इट इज रेनिंग। अब क्या बोला? इट इज रेनिंग, नोबडी कैन गो टू द सी द फिल्म। बारिश हो रही तभी तो नहीं जा पा रहे ना मूवी देखने के लिए। दैट मीन्स इफ इट इज रेनिंग नोबडी कैन गो टू वॉच द फिल्म, ये हो गया। अंडरस्टूड? अब क्या है ये? इफ इट इज रेनिंग नोबडी कैन ना, इफ इट इज रेनिंग नोबडी कैन गो टू सी द फिल्म। और क्या है उसका मतलब? क्या हुआ? ये नोबडी कैन गो टू सी द फिल्म मतलब क्या होगा? रेनिंग तो ट्रू है ना, इट इज ट्रू, तो हम यहाँ पे पी एंड लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? ये पूरा स्टेटमेंट यदि ट्रू है तो नोबडी कैन वॉच द फिल्म, वी कैन राइट लाइक दिस, नोबडी कैन वॉच द फिल्म। ये समझ आया बात? व्हाट आई डिड, इट इज रेनिंग नोबडी कैन गो टू सी द फिल्म, तो हमने क्या किया? इफ इट इज रेनिंग नोबडी कैन गो टू सी द फिल्म, ठीक है? ये तो ट्रू, इफ इट इज रेनिंग, ठीक है? अब क्या हुआ? मैंने ये जो स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग माने ये ट्रू है, तो हम क्या किया? इट इज रेनिंग को एंड लगा दिया दोनों में, तो फिर ये ट्रू हो गया, ठीक है? और यदि ये इफ इट इज ये रेनिंग हो रहे तो फिर क्या होगा? ये नोबडी कैन गो टू सी द फिल्म, तो ये क्यू में आ गया। तो इंप्लाइज क्यू माने होल स्टेटमेंट, इफ द होल स्टेटमेंट इज ट्रू देन क्यू, इसका मतलब ये हो गया। अंडरस्टूड? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लेट मी टेक वन मोर शीट। लेकिन एक दिमाग में एक और चीज आ रहा है, बिकॉज दिस आर ऑल सिलोगिज्म पार्ट। अंडरस्टूड? दिस इज सिलोगिज्म पार्ट एक्चुअली। हाइपोथेटिकल ये सब एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, ये जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है? तो हम यदि बोले इट इज रेनिंग नोबडी कैन गो टू सी द फिल्म, तो हम इसको तो ऐसे भी तो, ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं थी। आई थिंक इसको डिलीट करो। इट इज रेनिंग, तो पी इट इज रेनिंग नोबडी कैन गो टू सी द फिल्म, इफ इट इज रेनिंग नोबडी कैन गो टू सी द फिल्म। सॉरी, ये भी तो हो सकता है इफ इट इज रेनिंग, ठीक है? नोबडी कैन गो टू सी द फिल्म, ये भी ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉट पी, इसको सिंपल कर दिया, और नॉट पी और क्यू, ठीक है? और मतलब क्या हुआ? नॉट मतलब क्या हो गया, ठीक है? उसका मतलब क्या हुआ? जे दिस और लगा दिया, ये यदि फॉल्स है तो ये क्यू क्या है? क्यू इज ट्रू, तो देयरफॉर इट इज टोटोलॉजी। यू कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो, उतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं। कॉम्प्लिकेटेड और भी हो सकते हैं, हम उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? अब हम लोग बात करेंगे आर्गुमेंट्स की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स। इसमें आ जाएगा मॉडुलस पोलेन, अपोनेंट, टोलेन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आते हैं ये सारी चीजें भी। तो विल बी टॉकिंग अबाउट दीज स्टेटमेंट्स, ठीक है? आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स बोलता क्या है? इट इज एन माने बहुत सारा प्रोपोजिशन है, तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स है। P1 P2 P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, ये सारे ऑल प्रोपोजिशंस या प्रोपोजिशंस है। इसको हम क्या बोलते हैं? इतनी सारे प्रोपोजिशंस है तो इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? प्रीमाइसिस, इसको प्रीमाइसिस बोलेंगे, ठीक है? प्रोपोजिशन को एक को प्रोपोजिशन बोलेंगे, मोर देन वन प्रोपोजिशन है तो उसको प्रीमाइसिस बोल दिए। हाँ, ठीक है? मोर देन, और इससे एक आउटपुट आ गया, ठीक है? विच इज स्टेटमेंट, उससे कोई एक आउटपुट आ गया तो दैट इज नोन, दिस इज द कंक्लूजन, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? कंक्लूजन बोलते हैं। अंडरस्टूड? अब एक ये यदि ट्रू है, इफ क्यू इज ट्रू, तो उसको क्या बोलेंगे? वैलिड। एन आर्गुमेंट which is not valid is a fallacy। इसको स्टेटमेंट याद रखो, fallacy। इसको क्या बोलते हैं? fallacy। कीप इन माइंड। अब एक ये जो स्टेटमेंट है इफ क्यू इज ट्रू, तो उसको क्या बोलेंगे? वैलिड। एन आर्गुमेंट व्हिच इज नॉट वैलिड इज ए फैलेसी। इसको स्टेटमेंट याद रखो, फैलेसी। कीप इन माइंड।
ओके, अब हम लोग बात करेंगे मोडस पोडेन, मोडस टोलेन, ये सारे बारे में बात करेंगे हम लोग। पी, आप देखते हैं कुछ स्टेटमेंट्स है जो हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। एक होता है मोडस पोडेन, मोडस पोनेन, ठीक है। इसको ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिटैचमेंट, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। लॉ ऑफ डिटैचमेंट, तो इसमें क्या बोलता है, पी इज ट्रू एंड पी इम्प्लाइज, ये सारे प्रीमाइसेस है, ये दिया हुआ है। देन क्यू इज ऑल्सो ट्रू, दीज आर द प्रीमाइसेस। और ये क्या है, दिस वन इज द कंक्लूजन। ओके, अब क्या हुआ, इफ पी इज ट्रू एंड पी इम्प्लाइज क्यू दिया हुआ, तो क्यू इज ऑल्सो ट्रू। इफ पी देन क्यू, उसका मतलब क्या, क्यू इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज द कंक्लूजन। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। तो इसको हम एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। पी दिया हुआ है, पी इम्प्लाइज क्यू दिया हुआ है, क्यू इम्प्लाइज आर दिया हुआ है। इन्फर, इन्फर मतलब प्रूव आर, ये एक क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, आप एक काम करो, इसमें लिखो पी, ओके, और पी इम्प्लाइज क्यू भी दिया हुआ है, पी इम्प्लाइज क्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। आप मोडस पोनेन यदि हम यूज करेंगे, मोडस पोनेन में क्या बोले, क्यू इज ऑल्सो ट्रू, कंक्लूजन क्या आएंगे, क्यू इज ऑल्सो ट्रू, क्यू। तो इसको क्या बोलते हैं, मोडस पोनेन, ओके, क्यू, क्यू इज ट्रू। अब हम क्या करेंगे, अब क्यू इम्प्लाइज आर दिया हुआ है, क्यू इज ट्रू, क्यू इम्प्लाइज आर, ये दिया हुआ। नाउ क्यू इज ट्रू, यहां से तो क्यू इज ट्रू है, तो क्यू इज ट्रू है, तो क्या हो, यहां से क्या इन्फर करेंगे हम लोग, आर इज ट्रू, इन्फर कर रहे हैं ना, इन्फर, यहाँ पे आर, तो क्या हो, ये भी मोडस पोनेंट, ठीक है। तो क्या इसमें क्या इन्फर करिए, आर, जैसे हमने क्या किया, पी और पी इम्प्लाइज क्यू, इससे क्या इन्फर क्या किया, क्यू। तो पी और पी इम्प्लाइज क्यू से क्यू, क्यू और क्यू इम्प्लाइज आर से क्या हो गया, आर इन्फर कर दिया, तो क्या हो गया, वी गॉट द आंसर ना, आंसर आ गया, यही आंसर। तो ये एक्चुअली जो मोडस पोनेंट है, दिस इज फैक्ट टू गोल, फैक्ट टू गोल, ये बात याद रखो, फैक्ट से हम गोल में जाते हैं, दैट इज मोडस पोनेंट, फैक्ट टू गोल, अंडरस्टूड। एक गोल टू फैक्ट जाएंगे, ओके, विल गो गोल टू फैक्ट नो, प्लीज वेट 1 second। Modus tollens. Now we are going to discuss about modus tollens. हाँ, तो मोडस टोलेंट क्या बोलते हैं, 1 सेकंड, ये गोल टू फैक्ट है। तो क्यू दिया हुआ है, क्यू क्या दिया, क्यू दिया, पी इम्प्लाइज क्यू दे दिया, तो क्या हो गया, पी। तो इसको क्या बोलते हैं, गोल टू फैक्ट। व्हाट इज दिस इज एक्चुअली गोल टू फैक्ट। अब कैसे एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे क्या, क्यू ट्रू है और पी इम्प्लाइज क्यू, इफ पी देन क्यू, क्यू इज ट्रू, उसका मतलब क्या, पी ट्रू होगा, सिंपल है। तो इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, पी, पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज आर। इट इज बिट ए कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, आप लोग को देख के जितना इजी लगता है उतना इजी नहीं है। प्रूव आर इज ट्रू, तब मैंने क्या बोला, दिस इज गोल टू फैक्ट, गोल टू फैक्ट है ये, वो फैक्ट टू गोल था, ये उल्टा है, गोल टू फैक्ट। आप कैसे करेंगे, चलते हम उल्टा जाएंगे,
और और ये तो गोल है, गोल से हम क्या करेंगे, क्यू इम्प्लाइज आर। ठीक है, इससे क्या निकालेंगे, आर ट्रू है, क्यू क्यू इम्प्लाइज आर, मतलब यहां से क्या आएगा, क्यू इज ट्रू, ये क्या होगा, मोडस टोलन। ठीक है, अब क्यू है, अब क्यू इज ट्रू, नाउ पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इज ट्रू, तो क्या होगा, इससे इन्फर क्या कर देंगे, पी। तो क्या हम फैक्ट में चले गए, गोल से फैक्ट में चले गए, दिस वन इज द फैक्ट, दीज आर ऑल द फैक्ट। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट एक्चुअली। तो हम क्या किया, पी में पहुंच गए, आर से हम पी में पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या, प्रूव हो गया इसमें भी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है मोडस टोलन इज, इट इज यूज इन बैकवर्ड चेनिंग, और ये जो है ये यूज्ड इन फॉरवर्ड चेनिंग। ओके, एक होता है हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, देन डिसजॉइंटेड सिलोगिज्म, देन कंस्ट्रक्टिव सिलोगिज्म, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग करेंगे अभी हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म। हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये व्हाट इट इज सेइंग, एक एग्जांपल लेते हैं, इफ यू हैव माय पासवर्ड, लेट मी टेक वन मोर शीट। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, तो दैट विल बी बेटर। इफ यू हैव माय पासवर्ड, then you can log in to my Facebook। ठीक है, फाइन, पासवर्ड होगा तो हम फेसबुक में इंप्लाई कर सकते हैं, फेसबुक में जा सकते हैं। उसका मतलब इफ यू हैव माई पासवर्ड, मतलब पी इज द पासवर्ड, देन यू कैन लॉग इन टू माई फेसबुक। तो क्यू ले लो, पी इंप्लाइज क्यू, इतना ठीक है। उसके बाद लिखते हैं, इफ यू लॉग इन टू माई फेसबुक, देन यू कैन डिलीट माई अकाउंट। ये भी ठीक है। ठीक है, तो मतलब क्या, इफ यू हैव माई पास, इफ यू लॉग इन टू फेसबुक, क्यू इज द फेसबुक लॉगिंग इन, तो इफ यू लॉग इन टू फेसबुक यू कैन डिलीट माई अकाउंट, तो आर। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं, देयर फोर इफ यू हैव माई पासवर्ड, इफ यू हैव माई पासवर्ड, देन यू कैन डिलीट माई अकाउंट। ये भी ठीक है, वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, उसका मतलब क्या है, इफ यू हैव माई पासवर्ड पी, देन यू कैन डिलीट माई अकाउंट डायरेक्ट आर। तो ये भी हो सकता है, उसका मतलब क्या है, दैट इज, हम लिख सकते हैं, पी इंप्लाइज क्यू दे दिया, क्यू इंप्लाइज आर दे दिए, तो हम इससे ले सकते हैं पी इंप्लाइज आर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये दिस इज हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक होता है डिस्ट्रक्टिव डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, एक होता हाइपोथेटिकल, एक होता डिसजंक्टिव। डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, इसमें क्या है, इसमें क्या बोला, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसमें थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। द आइसक्रीम इज इधर, एग्जांपल ले लो, द आइसक्रीम इज इधर vanilla flavored
The ice cream is either vanilla flavored. One sec. The ice cream is either vanilla flavored or chocolate flavored. Chocolate flavored. उसका मतलब क्या? पी को आइसक्रीम ले लो. आइसक्रीम ना, आइसक्रीम इज इधर वेनिला फ्लेवर्ड और चॉकलेट फ्लेवर्ड. पी इज वेनिला एंड क्यू इज चॉकलेट. ऐसे कुछ है. ठीक है, तो ये मैंने लिख के रख दिए, वेनिला चॉकलेट. ओके. नाउ व्हाट आई एम सेइंग, द आइसक्रीम इज इधर. आइसक्रीम क्या है? पी इज पी क्या है? आइसक्रीम इज वेनिला फ्लेवर्ड. क्यों? आइसक्रीम इज चॉकलेट फ्लेवर्ड. ओके. तो द आइसक्रीम इज इधर वेनिला और चॉकलेट, इसका मीनिंग ये हो गया. ये तो समझ आ गया. एड इतना क्लियर है. अब हमने क्या किया? द आइसक्रीम इज नॉट वेनिला फ्लेवर्ड. द आइसक्रीम is not vanilla flavored. उसका मतलब क्या हो गया? नॉट पी. ठीक है. देयरफॉर वेनिला फ्लेवर जब नहीं है तो क्या होगा? देयरफॉर द आइसक्रीम इज चॉकलेट फ्लेवर. चॉकलेट फ्लेवर्ड. उसका मतलब क्या हो गया? द आइसक्रीम इज इधर वेनिला और चॉकलेट, ये तो ठीक है. द आइसक्रीम इज नॉट चॉकलेट फ्लेवर्ड, उसका मतलब क्या है? क्यू इज ट्रू. ठीक है. द आइसक्रीम इज चॉकलेट फ्लेवर्ड, तो इसका मतलब ये है. तो पी और क्यू और नॉट पी यदि है तो फिर पी क्यू इज ट्रू. अंडरस्टूड. तो दिस इज द थिंग. तो इसको बोलते हैं डिसजंक्टिव सिलोजिज्म. तो ये सारी चीजें आप लोग को दिमाग में रखने हैं. अब एक और चीज, कंस्ट्रक्टिव डिलेमा. डिलेमा, कंस्ट्रक्टिव डिलेमा में क्या बोलते हैं? एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ इट रेन्स आई विल टेक लीव. इफ इट रेन्स आई विल टेक लीव. ओके. उसका मतलब क्या? P implies Q. If it rains, P is it is raining, and I will take Q is I will take a leave. तो P implies Q मतलब क्या? If it rains, I will take a leave. अब एक और क्वेश्चन, आप एक और है. If it is hot outside, if it is hot outside, I will take a shower. I will take a shower. तो हम क्या लिखेंगे? If it is hot, R hot है तो I will take a shower. ठीक है, ये भी ठीक है. तो P क्या है? P is rain and R is hot outside. R is hot. ओके. अब क्या बोला? इधर इट रेन्स. इधर इट रेन्स और इट इज हॉट आउटसाइड. इधर इट रेन्स, पी और आर. इधर इट रेन्स और हॉट आउटसाइड. ठीक है. देयरफॉर कंक्लूजन क्या है? आई विल टेक ए लीव. आई विल टेक ए लीव और आई विल गो फॉर शावर. गो फॉर शावर. ये क्या है? दिस इज द कंक्लूजन. मतलब क्या हो रहा है? P इंप्लाइज Q दे दिया. एक मिनट हो गया. P इंप्लाइज Q, उसके बाद क्या दिया? R इंप्लाइज अस. P और R
तो इससे क्या लिख सकते? आई विल टेक ए लीव, मतलब क्या होगा, क्यू और एस लिख सकते हैं इसमें। कंक्लूजन में क्या है, क्यू और एस। एस क्या है, आई विल टेक ए लीव और आई विल टेक ए सार, क्यू और एस, तो क्यू और एस। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें आप लोग को करने हैं। उसके बाद कुछ फॉर्मूला है जो आप लोग को देखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट लेट मी टेक वन मोर शीट, लेट मी गो। अब फॉर ऑल ये सब तो हमने देखे, इंपॉर्टेंट थ्योरम, इंपॉर्टेंट नंबर वन, नॉट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ऐसे कुछ है। ओके, पी ऑफ एक्स। तो इसको क्या करेंगे, इसको यदि नॉट ऑपरेटर लगा दोगे, नॉट ऑपरेटर लगा दोगे तो फॉर ऑल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ये, या मीन्स एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल एग्जिस्टेंशियल नॉट ऑपरेटर लगा तो जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर उसको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का बिलोंग्स टू ए, वो ठीक है। आर नॉट पी ऑफ एक्स, ठीक है। ये नॉट नॉट जब यूनिवर्सल में चला जाएगा तो क्या होगा, देयर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो जाएगा और ए पी ऑफ एक्स उसमें नॉट लग जाएगा, सिंपल। अंडरस्टूड? और एक और फॉर्मूला है नंबर टू, इसको भी डी मॉर्गन्स फॉर्मूला बोलते हैं। नॉट देयर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एक्स है, बिलोंग्स टू ए, एक्स है बिलोंग्स टू ए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू, नॉट जब अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो जाएगा। एक सेकंड, बिलोंग्स टू ए, और क्या होगा, नॉट पी ऑफ एक्स। ये दोनों चीजें आप लोग को याद रखोगे, अभी हम लोग का काम आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते तो दैट वुड बी बेटर आई थिंक। जैसे इस सेकंड वाले के मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसकी इसके एग्जाम्पल, देयर एग्जिस्ट ए पर्सन who is 150 years old, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए पर्सन हु इज 150 years old। आप नॉट लगा दिए इसमें, देयर, इसका मतलब ये हो गया, ये पूरे स्टेटमेंट आप इसमें नॉट लगा दिए, मतलब क्या होगा, एवरी लिविंग पर्सन, यहाँ पे फॉर ऑल मतलब क्या, एवरी लिविंग, इसकी मीनिंग ये हो गया। ठीक है, अब इसकी मीनिंग मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं, एवरी लिविंग पर्सन, एवरी लिविंग पर्सन एवरी लिविंग पर्सन इज, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो इज नॉट 150 years old। वो आप लोग को क्लियर हो गया। तो ऐसे करके हम यदि यहाँ पे करें, एवरी लिविंग पर्सन, ये सेम स्टेटमेंट यदि मैं ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में लगाए, फर्स्ट वाले इस पे एवरी लिविंग पर्सन इज नॉट 150 years old, इसमें नॉट लगा दो तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए पर्सन हु इज 150 years old। ठीक है, इसका जस्ट कॉन्ट्रोडिक्टरी हो रहे, तो दिस इज द वे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ये सारे प्रोपोर्शन कैलकुलस हमने ओवर कर दिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग कहीं कंफ्यूजन कुछ भी है तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में डालें। इसके बाद हम लोग का स्टार्ट होगा मेथड्स ऑफ प्रूफ। नेक्स्ट टॉपिक अभी जो मैं स्टार्ट करूंगा वो है मेथड्स ऑफ प्रूफ। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विथ मेथड्स ऑफ प्रूफ। लेट मी टेल यू, ठीक है, तो काफी टाइम हो गए हैं। ठीक है, अब आगे का जो टॉपिक्स है, जैसे आपका मैथमेटिकल इंडक्शन, बूलियन अलजेब्रा, दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज यदि मैं इफ आई कवर ऑल दोज थिंग्स तो इट विल टेक ऑलमोस्ट
2 hours, more 2 hours. So it will be 4 hours to 5 hours class. So it would be difficult for you also. So we'll be covering the other topics in the next session. Okay. तो लेट्स स्टार्ट विथ मेथड्स ऑफ प्रूफ. मेथड्स ऑफ प्रूफ मतलब ये होता है, हम लोग अभी ट्रू फॉल्स ये सारी चीजें हमने अभी बहुत कुछ पढ़े, ये सारी चीजें देखे. ओके. नाउ क्या होंगे, जे सपोज कोई एक एग्जाम मेथड्स ऑफ प्रूफ मतलब हम प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे जो ट्रू है या फॉल्स है. वो बंदा दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, उसे कंक्लूजन आएंगे. कुछ फैक्ट्स होते हैं, प्रीमाइसेस होते हैं, और कंक्लूजन आता है. द कंक्लूजन इज ट्रू और नॉट, हाउ वुड यू नो. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मेथड्स है. मॉडुलस टोलन, मॉडुलस पोनेंट, हम लोग ये भी पढ़े थे शायद. ओ वही है, देखो. We have gone through hypothetical syllogism, digestive syllogism. Okay, modulus tollens. You have gone through the modulus tollens. इसको law of contraposition बोलते हैं. Modulus tollens. तो we are going to use all these things. Law of detachment. ये सारी चीजें हम यूज करके हम प्रूव करेंगे. ओके. तो लेट्स स्टार्ट. एंड जो ये मेथड ऑफ प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट है. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम रीजनिंग ऑल्सो, बिकॉज ये जो मैथमेटिक्स है, ये जो प्रोपोर्शन कैलकुलस है, इससे हम क्या करेंगे, ये रीजनिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक्चुअली दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग. ओके, आप कैसे प्रूव करेंगे वो हम अभी देखेंगे. एक क्वेश्चन लेते हैं. लेट्स टेक अ क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है, इफ माया सीज ए मूवी, she won't finish her homework. Finish her homework. Maya won't finish her homework. Maya won't finish her homework. Therefore, Maya sees the movie. Yeah, how it is valid? Yeah, these are the premises. These are the premises. And this one is the conclusion. Keep in mind. Conclusion. ओके. अब ये कितना ट्रू है, ये है. हम लोग क्या करेंगे, माया, इफ माया सीज द मूवी सी वोंट फिनिश हर होमवर्क. माया वोंट फिनिश हर होमवर्क, उसका मतलब क्या है, हमें क्या लगेगा, माया वोंट फिनिश हर होमवर्क मतलब सी मस्ट हैव सीन द मूवी, ये हमें लग रहे हैं. लेकिन एक्चुअली दिस इज नॉट द ट्रू. ओके. हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करेंगे, हाउ इट इज हैपनिंग. ओके. तो कैसे प्रूव करेंगे, लेट्स सी. इसको थोड़ा कम कर लेते हैं. पी ले लो. माया सीज द मूवी. क्यू ले लो. माया वोंट फिनिश हर होमवर्क. फिनिश हर होमवर्क. ठीक है. अब क्या बोला, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ माया सीज द मूवी. इफ माया सीज द मूवी सी वोंट फिनिश हर होमवर्क. तो पी इंप्लाइज क्यू, ये हो गया. अब उसके बाद क्या दिया, माया वोंट फिनिश हर होमवर्क. माया वोंट फिनिश हर होमवर्क मतलब क्यू. तो उसका मतलब क्या है, माया सीज द मूवी. माया सीज द मूवी एक्चुअली ये है. दिस इज द थिंग. तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम यदि लॉजिकली बोलेंगे, पी इंप्लाइज क्यू, ये तो ठीक है. और क्या बोल रहा, माया वोंट फिनिश हर होमवर्क. माया वोंट फिनिश हर होमवर्क मतलब क्या हुआ, एंड क्यू लगा दो. ओके. अब द स्टेटमेंट इज वैलिड और नॉट. इसके वैलिड मतलब क्या था, टोटोलॉजी. वैलिड मीन सिंपली टोटोलॉजी. टोटोलॉजी को वैलिड बोलते हैं हम लोग. अब देखते हैं. एंड क्यू मतलब क्या हुआ, माया सीज द मूवी. इफ माया सीज द मूवी शी वोंट फिनिश हर होमवर्क. एंड क्या बोल दिया, माया फिनिशेस हर होमवर्क. माया वोंट फिनिश हर होमवर्क. एंड क्यू कर दिया. देयरफॉर क्या बोला, कंक्लूजन क्या बोल रहा, माया सीज द मूवी. इसका होल, माया सीज द मूवी. माया सीज द मूवी मतलब पी. इसका मतलब ये है. ठीक है. तो हाउ टू डू, आप सिंपल इसको ट्रूथ टेबल में लेके जाते हैं. ट्रूथ टेबल, पी क्यू, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स. पी इंप्लाइज क्यू. ट्रू ट्रू में ट्रू, ट्रू फॉल्स है, ये फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स लिखोगे. ये तो नॉर्मल ट्रूथ टेबल है.
वन सेक, दिस वन इज ट्रू एंड दिस वन इज ट्रू। ठीक है, अब क्या बोला, P इंप्लाइज Q एंड Q। तो एंड Q जब कर रहे हैं तो क्या ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। ओके, अब इसको क्या इंप्लाइज P, इसको A ले लो, ये इंप्लाइज P, ये इंप्लाइज P, ट्रू ट्रू में ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा और ये ट्रू होगा। एक्चुअली ये दिस इज हैपनिंग। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, एक फॉल्स, कैन यू सी दैट वन फॉल्स स्टेटमेंट, दे ऑल, दिस इज नॉट अ टोटोलॉजी, tautology माने all the statement not, therefore the conclusion is not valid, therefore the conclusion is not valid। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चंस को करना है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सेकंड क्वेश्चन, second question is, if Kali can draw, if Kali can draw, she will get a job। okay, Kali can draw, Kali can draw, therefore she will get a job। okay, क्या बोला, के P ले लो, काली कैन ड्रॉ, क्यों, काली, सी विल गेट अ जॉब, सी मतलब काली, इतना ठीक है। अब क्या बोला, इफ काली कैन ड्रॉ, इफ काली कैन ड्रॉ सी विल गेट अ जॉब। ठीक है, काली कैन ड्रॉ, काली कैन ड्रॉ मतलब पी, तो क्या होगा ये, देखो सी विल गेट अ जॉब, सी विल गेट अ जॉब मतलब क्यों, ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोला, इसको लिखने का तरीका मैं देख रहा हूं, इफ काली कैन गेट अ जॉब, ठीक है, इफ काली कैन ड्रॉ सी विल गेट अ जॉब, ये तो ठीक है। अब क्या बोला, काली कैन ड्रॉ, दीज आर द प्रीमाइसेस, काली कैन ड्रॉ, काली कैन ड्रॉ मतलब क्या होगा, एंड पी, therefore she will get a job, she will get a job, she will get a job क्या है, क्यों, क्यों, ये, तो इसका हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बना के हम इजीली कर सकते हैं इसको सॉल्व। लेट्स डू इट, पी क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, तो क्या ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये तो पता है, एंड पी, तो क्या होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ओके, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इसको ए ले लो। ठीक है, हमने पहले क्या किया था, ए, अब क्या करेंगे, ए इंप्लाइज क्यू करते हैं, ट्रू ट्रू में ट्रू, इंप्लाइज क्यू है ना, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट, देयरफॉर देखो लास्ट में सब ट्रू है, टोटोलॉजी है, देयरफॉर द कंक्लूजन इज वैलिड। आई होप इट इज क्लियर। ओके, थर्ड क्वेश्चन,
इस तरह क्वेश्चन आते हैं पेपर में आप लोग 5 नंबर के। इफ काली कैन ड्रॉ, काली कैन ड्रॉ, if Kali can draw, then she will get a job. If Kali can draw, then she will get a job. Kali will not get a job. Therefore, Kali can't draw. आप देखते इसको करके, P क्या करेंगे, ये दोनों क्या है, प्रीमाइसेस, और ये क्या है, कंक्लूजन। मतलब क्या है, P क्या होगा, काली कैन ड्रॉ, और Q क्या है, शी विल गेट अ जॉब। आप क्या बोल रहे हैं, इफ काली कैन ड्रॉ शी विल गेट अ जॉब, ठीक है। काली विल नॉट गॉट द जॉब, माने नॉट Q, देयरफॉर शी कांट ड्रॉ, नॉट P। ऐसे कुछ स्टेटमेंट है। उसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, P implies Q and she will not get the job, and not Q, she will not get the job implies she will not, she can't draw, not P। ऐसे कुछ है। हम P implies Q करते पहले, P और Q लिखते, सॉरी, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो P implies Q, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। ओके, नाउ P implies Q and not Q, not Q यहाँ पे लगा दो, तो क्या होगा, फॉल्स, Q का कॉम्प्लीमेंट कर रहे, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, एंड दोनों का, P implies Q एंड नॉट Q, दोनों का एंड, क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, इज फाइन। आप क्या करेंगे, इसको ए ले लो, ए इंप्लाइज नॉट P, नॉट P मतलब P का नॉट क्या होगा, फॉल्स, नॉट P भी कहीं लिखना है आपको, यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, नॉट P, नॉट P मतलब क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। आप देखते हैं फॉल्स और फॉल्स में क्या होगा, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स में ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। वन सेक, हाँ, सारे ट्रू है, टोटोलॉजी है, देयरफॉर द कंक्लूजन इज वैलिड। तो ऐसे करके आप लोग को मेथड्स ऑफ प्रूफ को करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्लास 8 के क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद देखोगे, ये हम नहीं करेंगे, ठीक। तो हमने ये सारी चीजें हमने किए, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को देखने हैं, और जैसे द वे आई टॉट उसी तरह से आप लोग करना है, ये ऐसे करके ही इस टॉपिक को किया जाएगा, एंड दिस इज वेरी इजी। एक बार आप लोग नोट्स बनाओगे, प्रॉपरली करोगे, तो यू कैन गेट इट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में विल बी कमिंग विथ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बुलियन अलजेब्रा, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और थैंक यू, थैंक यू।